بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. تنویر احمد اسپیکنگ چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو اور ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کمپلسری انگلش کو کوڈ 3861 کا لیکچر 1 اپلوڈ کر دیا ہے، اور اس کا بھی ہم نے یہ ایف اے انٹرمیڈیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ کا یہ کورس ہے، آپ کا کریکلم اے آئی یو نے اس کو کمپرائز کیا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے. تو آپ ان تمام بکس کے بھی آپ لیکچر تنویر احمد اسپیک چینل پہ آپ سن کر اپنے ایگزام کی پریپریشن کر سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم لیکچر 1 کے پارٹ 2 کے لیکچر کا آغاز کریں. تمام اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسے تمام لوگ جنہوں نے ابھی جوائن کی ہے وہ ان لوگوں تک لازمی یہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ آپ کے جو ساتھی ہیں جو اس کورس کو جنہوں نے رکھا ہوا ہے یا جنہوں نے ایپ اسٹارٹ کیا ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے. تو آئیے چلتے ہیں لیکچر 1 کے پارٹ 2 کی طرف. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں تک ہم نے پارٹ 1 میں ڈسکس کیا تھا. تو ڈو یور بک ٹیچ یور، کہ آپ کو ابھی تک جو آپ نے سیکھا ہے، آپ نے جو ریڈ آؤٹ کیا ہے، آپ اس قابل ہیں کہ اس جو کویشچنز ہیں اس کے آپ جواب دے سکیں. تو آپ نے جو بھی فنکشنز ابھی تک سیکھے ہیں یا ابھی تک آپ نے ریڈ آؤٹ کیا ہے، آپ نے ان تمام پوائنٹس کا یہاں پہ 1 بائی 1 آپ نے یہ جواب دینا ہے. تو آج کا جو لیکچر ہے ہم نے یہاں تک پارٹ 1 بھی کمپلیٹ کیا. انٹروڈکشن ٹو اسٹڈی اسکلز پارٹ 2 کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. ایز وی اسٹارٹیڈ ارلیئر، جیسے کہ ہم شروع میں اسٹارٹ کر چکے ہیں، دس یونٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ the study skills essential for carrying out studies effectively and getting good marks in the exams. کہ یہ اسٹڈی اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے جو آپ کے لیے ایک ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اسٹڈی جاری رکھیے اس کو افیکٹو طریقے سے، یعنی کہ مؤثر طریقے سے آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں، ان تمام پرنسپلس کو آپ فالو کریں اینڈ گیٹنگ گڈ مارکس ان دا ایگزام، اور اپنے ایگزام میں اچھے مارکس لے سکیں. فار ایگزامپل پلاننگ اسٹڈی شیڈول، آپ نے پلاننگ اسٹڈی شیڈول کو آپ نے پلان کرنا ہے، اپنے پڑھنے کے شیڈول کو آپ نے پلان کرنا ہے، اینڈ مینیج یور ٹائم افیکٹولی، اور آپ کو جو مینیج ہے اس کو افیکٹو طریقے یعنی کہ مؤثر طریقے سے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیوز رکھنے کے لیے. امپروونگ ریڈنگ کمپریہنشن، ٹیکنگ نوٹس، اور جو اپنی جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو کمپریہنسو طریقے سے یعنی کہ براڈلی کنسیپٹ میں اس کو امپروو کرنا ہے. آپ نے ٹیکنگ نوٹس لینے ہیں، ریڈنگ بکس آپ کو پڑھنا ہے، لسننگ ٹو لیکچر سننا ہے، کہ ٹیوٹوریلز جو آپ کو ٹیوٹوریلز بھیجے گئے ہیں یا جو آپ کو سی ڈی بھیجی ہوئی ہے یونیورسٹی نے اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اینڈ میمورائزنگ امپورٹنٹ پوائنٹس، اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو آپ نے میموری یاد رکھنا ہے. ہیونگ ڈسکشنس، اور ڈسکشن جاری رکھنی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اپنے ٹیوٹرس کے ساتھ. ڈسکورنگ یور اون پرسنل اسٹڈی اسٹائل اینڈ لرننگ اور دا بیسٹ وے ٹو پریپیئر فار ایگزام، اور اپنے آپ کو جو لرننگ اور سیکھنے کا انداز ہے اس کو ڈسکور کرنا ہے کہ آپ کو جو سا طریقہ اچھا لگتا ہے ایگزام کی تیاری کے لیے آپ اس کو ڈسکور کریں، اپنے لیے چوز کریں، وغیرہ وغیرہ. آلویز ریمبر، ہمیشہ یاد رکھیں، دا سکسیس اسٹڈی ان ڈیپینڈ گریٹلی نو ہاؤ ویل یو نو ہاؤ ٹو اسٹڈی. آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کامیابی کا جو معیار ہے جو ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے کس طرح ہاؤ نو آپ نے اپنی اسٹڈی کو کس طرح یاد رکھا ہوا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کامیابی کا معیار. ان دس یونٹ، اس یونٹ میں وی وانٹ ٹو ہیلپ یو ڈیولپ گڈ اسٹڈی اسکلس. ہم آپ کی مدد کریں گے آپ نے اسٹڈی اسکلس کو کس طرح امپروو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. اینڈ گڈ ہیبٹس آف آرگنائزیشن، اور اپنی جو ان چیزوں کو ہیبٹ بنانی ہے، اچھی ہیبٹ بنانی ہے آرگنائز کرنے کے لیے، سو دیٹ یو میک دا بیسٹ یوز آف یور اسٹڈی ٹائم. تو آپ اپنے ٹائم کو پڑھنے کا ایک بہتر طریقہ بنا سکتے ہیں. نو بی ہونیسٹ ٹو یور سیلف، اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری کریں. اینڈ آسک یور سیلف اے کویشچن، اور اپنے سے یہ کویشچن پوچھیں، ایم آئی گوئنگ ٹو ہیو گڈ اسٹڈی ہیبٹس، کیا میرے اندر ایک اچھی پڑھنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور بیڈ اسٹڈی ہیبٹس یا بری ہیں. یعنی کہ آپ ٹائم کیا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کہ آپ اپنے انر سیلف، اپنا جو تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اف یو ڈیولپ گڈ اسٹڈی ہیبٹس، اگر آپ کے اندر پڑھنے کی اچھی کوالٹیز آ چکی ہیں ایٹ دا اسٹارٹ، شروع سے، یو ول فائنڈ دیٹ یور اسٹڈیز بیکم مچ ایزی. تو آپ کو یہ تمام کے تمام جو پڑھنے کا طریقہ کار بہت آسان لگے گا. ایز اے رزلٹ ایٹ دا اینڈ یو ول بی obtain گڈ مارکس، اور آخر کار آپ ایک اچھے مارکس حاصل کریں گے. یو ول لرن مور کوئکلی، آپ تیزی سے اچھا سیکھیں گے، زیادہ سے زیادہ سیکھیں گے. اینڈ ود لیس ایفرٹ، کم کوششوں کے ساتھ، اینڈ یو ول پروگریس ٹو بی نیکسٹ اسٹیج اسموتھلی اینڈ کمفرٹیبلی، اور آسانی کے ساتھ آپ اچھی اگلی اسٹیج پہ پہنچ سکیں گے اسموتھلی اینڈ آرام کے ساتھ. بیفور یو بگن اسٹڈی پڑھنے سے پہلے
we would like to give you some tips. हम आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो might find it useful, जो आपको यकीनन मददगार साबित होंगी, या आपके लिए मुफीद साबित होंगी. मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करें टू लर्न बाय सेटिंग ए क्लियर कट गोल, और अपना एक गोल बनाएं, एक क्लियर कट गोल बनाएं पढ़ने के लिए. अपने आप को मोटिवेट रखें. इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड यू वुड नॉट लर्न. अगर अपने आप को मोटिवेट नहीं रखेंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे. प्रैक्टिस द स्किल दैट यू हैव लर्न, जो आपने सीखा है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें. यू डोंट यूज इट इफ़ यू आपने इस्तेमाल नहीं की, आपने एक्सरसाइज नहीं की, प्रैक्टिस नहीं, यू विल फॉरगेट इट सूनर, आप जल्दी ही इसको भूल जाएंगे. रिव्यू एंड रिवाइज वट एवर यू हैव लर्न सो दैट यू हैव रिमेंबर इट लेटर ऑन. आप इसको बार बार देखें, रिवाइज करें, रिव्यू रखें जो आपने अभी तक सीखा है, ताकि अब बात को आप याद रखें. रिवर्स स्पेसिफिक टाइम, रिजर्व स्पेसिफिक टाइम, खास मखसूस टाइम रखें हर हफ्ते में, वेर यू एग्जामिन योर स्टडीज फॉर दैट वीक. और आप एग्जामिन करें कि आपने इस हफ्ते में क्या कुछ सीखा या क्या कुछ पढ़ा. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखें. एंड अर्न फ्रॉम योर सक्सेस, और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें, ये अर्न करें सक्सेस को. डोंट वेस्ट टाइम, स्पेंड इट अफेक्टिवली, अपने टाइम को मत ज़ाया करें और अफेक्टिवली इसको स्पेंड करें जो आपका मुतासर करें, जिससे आप कुछ सीख सकें. बी फोकस रहें, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट. आपका जो गोल है, आपने जो टारगेट सेट किया गया है, उस पर फोकस रखें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करें. सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोच, अच्छी जो अप्रोच है वो अपनाएं. दैट सूट यू सिंस लर्निंग इज़ योर पर्सनल स्टाइल, और जो आपके लिए अच्छा है, आपको अपने पर्सनली तौर पे जो सीखने का अंदाज अच्छा लगता है उसको आप अडॉप्ट करें. कंप्लीट असाइनमेंट टास्क इन टाइम, और अपनी आपकी जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करें टाइमली. डोंट फील शाय, शर्माएं मत. एंड फाइंड आउट व्हेन एंड यू हु टू आस्क फॉर हेल्प, और किसी से भी आप पूछें, शर्माएं मत, जो आपको सीखने में मददगार साबित होता है. नाउ एनालाइज योर ओन लर्निंग स्टाइल, और ये कुछ क्वेश्चंस है, आप उसको डियर स्टूडेंट इटसेल्फ आप इसको एनालाइज करें कि अभी तक आपने यस और नो जो आप करने के बाद इसको आप एनालाइज करें अपने आप को इटसेल्फ, ताकि आपको पता चले अपने अब इन तमाम चीज़ों क्या कुछ सीखा. इफ़ यू हैव आंसर यस टू मोर 50% क्वेश्चन, यू नीड टू go through this unit very carefully since we are going to give you advice and how to overcome some of the issues. और अगर आपने ज़्यादातर आपका 50% आप इन क्वेश्चंस पे 50% अगर आंसर आपको मिलता है तो आप बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं. सिंस वी गोइंग टू, और हम आपको जो सीखते दे रहे हैं, जो एडवाइस दे रहे हैं, आप उनको अडॉप्ट कर रहे हैं. हाउ टू ओवरकम, और जो सम इश्यूज हैं जो आपको प्रॉब्लम फेस आ रही हैं उसमें आप किस तरह उन इश्यूज को आपने कवर करना है. वट एवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ, आप जो भी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, यू टेक टू द फर्स्ट स्टेप, आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है. वट एवर यू आर स्टूडेंट, वेदर आप स्टूडेंट हैं और यू वांट टू बिकम ए टीचर, आप उस्ताद बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और ज्वाइन एनी अदर प्रोफेशन, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप विच यू लीड्स टू द सेकंड स्टेप. आपको पहला, आप जिंदगी में जो कुछ भी बनना चाहते हैं आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है, सेकंड स्टेप से पहले द थर्ड स्टेप एंड सो ऑन. और तीसरा स्टेप जो भी आप करना चाहते हैं, जो आप कर रहे होंगे. ईच गोल रिक्वायर्स कंसंट्रेशन, हर जो मकसद है वो तवज्जो चाहता है ऑन ईच स्टेप. सो लेट अस गो टू स्टेप बाय स्टेप. तो हर कुछ स्टेप जो है ना आपकी तवज्जो चाहता है, आपकी कंसंट्रेशन चाहता है. सो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप, द फर्स्ट स्टेप प्लानिंग टू स्टडी. जो पहला स्टेप है सीखने का, आपने प्लान करना है, स्टडी को आपने पढ़ना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसको प्लान बनाना है. तो सब उसको आपने उसका कैलेंडर करना है. यू हैव सम टाइम, सम अक्रॉस द फ्रेज थिंक बिफोर यू एक्ट. आपने सम जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ उसको तैयार करना है, किसी भी चीज़ को, फिर उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगी. तो यू माइट रिमेंबर यू वर लिटिल बीइंग टोल्ड टू बुक बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट. आपको याद होगा व्हेन यू वर लिटिल बीइंग टोल्ड टू लुक, और बिफोर यू क्रॉस द सिटी, जाने से पहले, किसी भी आप जाने से पहले आप छोटा सा आपको बताना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है. इट इज़ अपॉइंटेड टू थिंक, और ये आपको आपके सोचने पर बहुत अहम होगा. टू आवर प्लान फर्स्ट स्टेप, कि आपका प्लान आगे स्टेप के लिए बिफोर यू डू एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले. सम स्टूडेंट्स आर नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लानिंग. कुछ स्टूडेंट्स की जो प्लानिंग की आदत नहीं होती. रिमेंबर प्लानिंग इज़ द बेस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग योर गोल. और याद रखें किसी भी चीज़ की प्लानिंग जो है ना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है.
So if you have an assignment, do on a considered date or do on a certain date. अगर आपकी assignment है तो आप उस date को certain करें, attain करें. Or if you want to finish a certain topic by a certain date, अगर आपने उस topic को और उस डेट पे ख़त्म कर दिया, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक आउट योर कैलेंडर एंड, और अब जो आपका फर्स्ट स्टेप है, आप कैलेंडर को ऑर्गेनाइज करें एंड मार्क द डेट यू वांट टू हैव योर असाइनमेंट. और कोर्स आप कैलेंडर लेंगे और आप उस असाइनमेंट को, उस लेक्चर्स को वहाँ पे आप मार्क कर लेंगे. यहाँ पे कहने का डियर स्टूडेंट ये मकसद है कि आपने अपना गोल सेट करना है. आपके पास कैलेंडर है, आपके पास टाइम है, और उस टाइम के मुताबिक उस डेट को कंसिडरेट करना है. आपकी असाइनमेंट किस डेट पे है और किस चीज़ पे है, आप उस चीज़ को उस टिक कर देना कि फलान डेट को, मिसाल के तौर पे 10 तारीख को है, 10 तारीख को आपके टिक कर लेना है. वहाँ पे आपने लिख देना है उस कैलेंडर पे, उस टॉपिक को, यहाँ तक ये चीज़ें आपने करनी है. ये आपका सेटिंग गोल होगा, या ये आपका प्लान होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. नेक्स्ट है सेटिंग गोल. सेटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज मोटिवेशन सक्सेस. सेटिंग जो है ना वो एक मोटिवेशन के लिए और कामयाबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है. ए गोल टू रिमाइंड यू, एक जो मकसद है, एक जो गोल है वो आपको याद दिलाता है. समथिंग यू वांट टू अचीव, कि आप कुछ करना चाहते हैं या कोई अचीव करना था. ट्राई टू आइडेंटिफाई, कोशिश करें आइडेंटिफाई करने की, व्हाट योर गोल्स आर एंड प्लान अकॉर्डिंगली. तो आपका गोल्स और आपके प्लान उसके मुताबिक क्या है. ए शॉर्ट टर्म गोल इज व्हाट यू वांट टू अचीव सून. और ये एक जो शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है. शॉर्ट टर्म गोल वो आपको जल्द ही अचीव करना होता है. एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म गोल आर फिनिशिंग योर होमवर्क एंड डूइंग वेल इन टुमारो इज टेस्ट. और जो शॉर्ट टर्म गोल है वो आपका जो होमवर्क है उसको आप खत्म करेंगे और कल को आप उसका टेस्ट देंगे या उसके लिए आप प्रिपरेशन करेंगे. ए लॉन्ग टर्म गोल समथिंग यू वांट टू अचीव एट सम लेटर डेट. और जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो बाद में आप उसकी डेट को सेट करते हैं उसको अचीव करने के लिए. एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स आर राइटिंग एन असाइनमेंट एंड पासिंग एग्जाम्स. जो लॉन्ग टर्म गोल है उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि आप असाइनमेंट राइट करते हैं और एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या एग्जाम को पास कर रहे होते हैं. ये लॉन्ग टर्म है. शॉर्ट टर्म आपका जो होमवर्क है उसको कंसिडर किया जाता है. लॉन्ग टर्म आपका एग्जाम वगैरह या असाइनमेंट वगैरह जिसके आपको बाद में नंबर आते हैं या नंबर मिलता है, उसको चेकिंग करने के बाद उसको आप कंसिडर करते हैं. So what motivates you? तो आपको क्या मोटिवेशन मिली? What are you studying? आप क्या पढ़ रहे हैं? If you are studying because that is what your parents want, आप क्या पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं. you may find it difficult to motivate yourself, कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है. इन तमाम चीज़ों को मोटिवेशन आपको प्रॉब्लम पे फेस करनी पड़ रही है. इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए या उस गोल को मोटिवेशन अपने आप को पहचानने के लिए. बट मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम विद इन रियली मेक्स अ डिफरेंस. और यही जो मोटिवेशन होती है वो आपको मुख्तलिफ बनाती है दूसरी चीज़ों से. टू सेट अप्रोप्रिएट गोल्स, तो आप मुनासिब गोल सेट करें. यू मस्ट नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अचीव. तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो आप जानना चाहते हैं आपके लिए, आप क्या अचीव करेंगे. इफ़ यू डोंट हैव क्लियर गोल्स, आपका अगर आपका क्लियर मकसद नहीं है, गोल नहीं है, यू विल नॉट बी फोकस. तो आपका फोकस नहीं होगा किसी भी अचीवमेंट के लिए या किसी भी मकसद के लिए. वेदर रिलेटेड टू स्टडी, वेदर रिलेटेड टू एग्जाम, वेदर राइट ऑन योर असाइनमेंट्स. तो आप उसमें आप फोकस, आपका गोल नहीं है तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे. We would therefore recommend that you write down your goals so that you can always remember them. इसलिए हम आपको ये नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपने गोल को लिखें और उन तमाम चीज़ों को याद रखें. Each goal you get should date what you will do. आप हर गोल का मकसद आप क्या करना चाहते हैं उसकी एक डेट होनी चाहिए. एंड व्हेन यू विल अकम्प्लिश, और कब आप उसको कंप्लीट करना चाहते हैं. देयर शुड बी डिटर्मिनेशन, ये आपका इरादा होना चाहिए. एंड विल पावर टू डू, और ताकत होनी चाहिए कि आप ये करेंगे. सक्सेसफुल पीपल आर ऑल वेरी डिटरमाइंड इन अचीविंग देयर गोल्स. और जो कामयाब लोग होते हैं वो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए पक्का और मुकम्मल डिटरमाइंड होते हैं, इरादा रखते हैं. और टू कम्प्लीट समथिंग, और कुछ चीज़ों को कंप्लीट करने के देन दे कैन बी प्राउड ऑफ, और वो फिर इस पे आप फख्र महसूस करते हैं. योर गोल शुड बी, आपका मकसद आप यकीनन आप कर सकेंगे विद इन योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़. आप अपनी जो आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो काबिलियत है, आपका जो हुनर है, जो आपके पास जो मोटिवेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली नोइंग योर स्ट्रेंथ, अपनी खूबियाँ एंड खामियाँ विल हेल्प यू सेट गोल्स यू कैन अकम्प्लिश. आपकी जो खूबियाँ और खामियाँ हैं वो आपको आपके गोल की कंप्लीशन की तरफ ले जा सकती हैं या आपको बता सकती हैं, वो आपकी मदद करती हैं. रियलिस्टिक, यकीनन आपको हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहिए. सेटिंग ए गोल टू लर्न द
spelling of these new words and day in realistic. और अपने गोल को सेट करते हुए आप एक नए स्पेलिंग को आप सीखने जा रहे हैं कि 3 न्यू वर्ड्स, जो आपके 3 वर्ड्स हैं, a day is a realistic, आज एक हकीकी दिन है. Try to learn the spelling of 50 new words a day is not realistic. आप कोशिश करेंगे कि आज आपने 50 ऐसे नए वर्ड आपने सीखने हैं हकीकी तौर पे. आज का आप ये गोल बना लें, डे इज़ नॉट रियलिस्टिक, और ये आपके लिए एक हकीकत होगा और आप इन चीज़ों को रियलिटी तौर पे आप सीख सकेंगे. So flexible things will not go the way you have thought about in the beginning, and you may even need to change your goal. कुछ चीज़ें आपको विल नॉट गो द वे, आपको रास्ता नहीं देंगे यू हैव थॉट, जो आपने सोचा अबाउट द बिगिनिंग, शुरू में, एंड यू मे इवन नीड टू चेंज योर गोल. तो आपको उन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा. अब अगर आप किसी भी चीज़ के मतलब रियलिस्टिक नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, तो ज़्यादा डेफिनेटली आपको वो अचीव करने के लिए प्रॉब्लम होगा. यहाँ पे इन चीज़ों का कहने का मकसद ये है कि पहला रियलिस्टिक है, आपने हकायक चुनना है, फ्लेक्सिबल आपने होना है कि अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो आप वो चीज़ें नहीं चेंज करने पाएंगे. सो स्टे फ्लेक्सिबल सो यू कैन रियलाइज ए चेंज इज नेसेसरली, यू शुड बी रेडी टू मेक द चेंज. तो आप उन चीज़ों को लाजमी चेंज करते रहें. अगर आपने जो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम शुरू में आपको प्रॉब्लम फेस हुई है, तो आप उसको थोड़ा सा इजी की तरफ आ जाएं, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें ताकि आप अपने गोल को चेंज कर सकें. तो मेजरेबल, अभी आपने जो कुछ सीखा है, जो आपने प्रोग्रेस की है, उसके मेजर लाजमी रखें. उसका कहने का ये मकसद है आपने डिमोटिवेशन की तरफ आप ना जाएं. अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको मसला पेश आ रहा है, तो उसमें आप उन चीज़ों को चेंज करने के बाद फ्लेक्सिबल भी रहें, रियलिस्टिक रहें, और उसकी मेजरमेंट लाजमी करते रहें, यानी कि उसकी एवेल्यूएशन लाजमी करते रहें कि अभी तक आपने जो की, अगर आपको कोई हार्ड प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा मसला आ रहा है, तो उसको आप चेंज कर लें. मेजरेबल का ये मकसद होता है यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको. सो डिड यू गेट योर गोल्स व्हेन यू डिसाइडेड टू डू द इंटरमीडिएट कोर्स. अगर आपने डिड यू गोल सेट कर लिए व्हेन यू डिसाइड, जब आपने फैसला किया टू डू इंटरमीडिएट कोर्स को करने से पहले. इफ यस, अगर यस, व्हाट विद दीज, वो चीज़ें क्या हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ योर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म. फॉर एग्जाम्पल, आप उन चीज़ों के शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स की लिस्ट बनाएं. मिसाल के तौर पे यू मे राइट देन यू वांटेड टू गो फॉर बीए. अगर आप लिखना चाहते हैं यू वांटेड टू गो फॉर बीए के लिए जाने देते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, और मतलब एफए करने के बाद आप बीए करना चाहते हैं, वो अपने गोल में सेट कर लें, लिख लें. तो डियर स्टूडेंट, वो 3 चीज़ें हैं जो पहले हमने डिस्कस की कि आपके मेजरेबल, फ्लेक्सिबल एंड जो रियलिस्टिक होना चाहिए. वो तीनों की चीज़ें आप हकायक में बमड़ी होनी चाहिए, आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और आपको मेजरेबल होना चाहिए कि आपने अभी तक जो करना चाहते हैं उनको आप रिकाउंटेंट करना चाहिए, और रिकाउंट करके और उनकी वैल्यूएशन करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए. हाउ सक्सेसफुल यू हैव बीन सो फार इन अचीविंग योर गोल्स, और कितनी कामयाबी अभी तक हासिल की है अपने गोल्स की तरफ जो आपने सेट की है. इफ यू थिंक, अगर आप सोचेंगे यू हैव नॉट बीन एबल टू अचीव एनी ऑफ दोस, व्हाट माइट बी द रीजंस, राइट फ्यू ऑफ दिस रीजंस एज वेल. अभी तक जो आपने सोचा है, अभी तक वो आपने जो अचीव किया है, उसके मतलब आप क्या रीज़न है कि अभी तक आपने, उसके मतलब आपने लिखना है कि आपने वो चीज़ें जो अभी तक अचीव नहीं की, उसके क्या रीजंस हैं और क्या वजह है. ये आपका आंसर 6 होगा. यूजफुल टिप्स फॉर स्टडिंग, और इम्पोर्टेंट टिप्स हैं आपका पढ़ने के लिए. सम पीपल I mentioned earlier the best way for you to study is what work best for you, कि आपके लिए बहुत अच्छा काम कौन सा ज़रूरी है. जैसा हम पहले बता चुके हैं, सम पीपल लर्न बेस्ट थ्रू रीडिंग. कुछ लोग जो है ना वो ज़्यादा सीखते हैं पढ़ने से. अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग, अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग हेल्प्स ए लॉट ऑफ इन रिमेंबरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेशली. और आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसको अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें. if it is your own book, अगर आपकी अपनी किताब है, it saves you from reading the entire paragraph again. और वो आप उन लाइनों को आप अंडरलाइन कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, तो आपका टाइम बचेगा कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने का. ट्राई टू नॉट टू अंडरलाइन हाईलाइट सो मच, इट इज़ रियली यूजलेस. अगर आप कोशिश नहीं करेंगे अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो ये आपके लिए बेकार होगा. सो प्लानिंग एंड मैनेजिंग स्पेसिफिक टाइम
थैंक्स फॉर स्टडी। आपने मैनेज करना है, आपने प्लान करना है, अपने टाइम को टाइमली स्पेसिफिक टाइम बनाने के लिए, पढ़ने के लिए ट्राई टू स्टडी द सेम टाइम ईच डे, और कोशिश करें कि एक टाइम पे आप जो है ना वो उन तमाम चीज़ों को आप पढ़ें। रिव्यू योर नोट्स बिफोर बिगिनिंग एन असाइनमेंट। अपने नोट्स को जो आपने लिखा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इनको रिव्यू करें कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या चीज़ें नहीं लिखी है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्ट पॉइंट दे रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। टू टेल योर फ्रेंड्स नॉट योर ड्यूरिंग स्टडी, यानी कि ये आप का जो स्टाइल है पढ़ने का, उस वक्त आप बताएंगे कि इस टाइम पे अपने आपके जो दोस्त हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करने पढ़ने के दौरान। सेट और 45 मिनट्स इंटरवल्स, और 45 मिनट्स का के लिए आप बैठे हैं। 45 मिनट में आप व्हेन यू फील यू कैन नॉट कंसंट्रेट, आप 10 से 15 मिनट आप वहाँ से ब्रेक ले सकते हैं। तो रिवार्ड योर सेल्फ इफ़ यू हैव मेट योर गोल। अगर आपने आज का वो आपका जो गोल है वो पूरा कर लिया, अपने आप को रिवार्ड दें। और एंड फाइनली रिवार्ड यू हैव स्टडीड देन यू गो टू बेड। और फाइनल आखिरकार आप जो आपने आज पढ़ा है उसके मतलब आप लाजमी देखें, आप उस पर लाजमी गौर करें कि अभी तक आपने जो क्या देखा है, क्या पढ़ा है, उसके मतलब अपने आप से सवाल करें, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस अपने साथ करें, और उसके मतलब आपने क्या लर्न किया, क्या अबाउट किया, तो उसके आप लाजमी अपने आप से इन चीज़ों को डिस्कस करें। तो हाउ नॉट टू स्टडी, इस थर्ड पार्ट में हम हाजिर होंगे इस लेक्चर के साथ। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 इंटरमीडिएट इंग्लिश कंपल्सरी 1 386 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है। पार्ट 3 के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।